हेलो गाइस, आवर टुडेज टॉपिक इज़ वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। बच्चों, हमने वर्क डन पढ़ा था फॉर द गैसियस सब्सटेंस। उसमें एक्चुअली हमने देखा था कि अ गैस जनरली आइडियल गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर ओनली। अब तो गैस एक्सपांड होता है, कभी कभार गैस कॉम्प्रेस होता है। एक्सपांड होता है तो हम लोग कहते हैं कि वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, एंड if gas is compressed, work is done on the system by the surrounding. Understood? But वहाँ पे chemical reactions नहीं हो रहे थे। गैस expand होना, expansion of gas, compression of a gas, but it does not shows any sort of a chemical reaction. We are going to see a work done in chemical reaction. जब chemical reaction होगा, a chemical reaction between the reactant to forms the product actually. A reactant में भी होगा solid state में, gas state में, और मे बी a liquid state में। तब वर्क डन होता है क्या, और अगर होता है सो व्हाट इज द एक्चुअल इक्वेशन फॉर दैट वर्क, फॉर दैट केमिकल रिएक्शन, दैट विल सी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, स्टार्ट करते हैं विद द सेम इक्वेशन दैट वी स्टडीड in PV work, that is pressure volume work. So here the pressure volume work is given by W is equal to minus PEXT into delta V, where W is the work done, PEXT that is external pressure, correct, and delta V is the change in volume, V2 minus V1. Okay, assuming PEXT is exactly equal to P, external pressure is exactly equal to P. If so, in the equation 1 we replace PEXT by P over here. Okay, in equation 1 PEXT is replaced by P, so equation becomes W is equal to minus P into delta V. And what is delta V? Delta V is V2 minus V1, correct? So if we write delta V, V2 minus V1, so then equation, final equation we will get, that is W is equal to minus PV2 plus PV1. Understood? Minus PV2 plus PV1, because see here delta V is V2 minus V1, so minus P into V2 minus V1, so minus P से मल्टीप्लाई करेंगे V2 को एज वेल एज V1 को, सो क्या हो जाएगा, W is equal to minus PV2 plus PV1. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब कंसिडर कर रहे हैं कि वॉट एवर रिएक्शन टेक्स प्लेस, ओके, वो आइडियल गैसेस है, the ideal gases are reacting with each other over there. Okay, तो फिर क्या होगा, आइडियल गैस इक्वेशन कंसिडर कर लेंगे हम लोग. ओके, एंड आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू nRT. अब इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम डेफिनेटली चेंज होगा, चेंज इन वॉल्यूम. सो फॉर द इनिशियल वॉल्यूम एज वेल एज फॉर द फाइनल वॉल्यूम, दैट इज V1 एंड V2 के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा, PV1 इज इक्वल टू N1RT एंड PV2 इज इक्वल टू N2RT. अंडरस्टूड? PV1 इज इक्वल टू N1RT, PV2 इज इक्वल टू N2RT. अब ये PV1 एज वेल एज PV2 what we got as equation number 3 over here, so वो equation हम लोग equation 2 में place कर देंगे, because here we required in equation number 2 the value of PV2 and PV1. So W is equal to minus N2RT, that is the value of PV2 plus N1RT, a value of PV1. ओके, अब यहाँ पे RT कॉमन है, सो कॉमन निकाल लेते हैं. सो W इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट N2 माइनस N1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ओके, इसलिए N2 माइनस N1 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू RT. So N2 minus N1, that representing the change in number of moles of a product and the reactant. So N2 minus N1, that is equal to delta N only. So W is equal to minus delta Ng RT. That is equation number 4. And this equation gives the work done by the system in chemical reaction. Okay, this particular equation W is equal to minus delta Ng RT gives the work done in a system इन स्पेशली केमिकल रिएक्शन. ओके बच्चों, इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम लोग प्रीवियस वीडियो में ही कर लिए थे. एक्चुअली इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, सो इसलिए एक ही था. सो इन दैट सीक्वेंस ओनली वी हैव टेकन द न्यूमेरिकल्स. सो इजी न्यूमेरिकल है, यू कैन सी द वीडियो अगेन एंड सॉर्ट आउट द न्यूमेरिकल्स. ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर साइन कन्वेंशन देख लेते हैं W का, especially in chemical reaction. Here the sign of W is depends upon the delta V, that is change in volume. वो होगा by the number of moles of the gas as well as gas as a reactant and the product. So we'll see the number of cases where first one is if N2 is greater than N1. N2 number of moles
ऑफ फाइनल स्टेट एंड n1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इनिशियल स्टेट. अब n2 देख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और n1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एक्चुअली. सो डेल्टा Ng इज पॉजिटिव. अगर n2 इज ग्रेटर देन n1 सो डेफिनेटली n2 माइनस n1 होगा तो डेल्टा Ng इज पॉजिटिव. एंड इफ डेल्टा Ng इज पॉजिटिव इट मीन्स W इज लेस देन जीरो. अंडरस्टूड. W इज लेस देन जीरो यानी W की वैल्यू नेगेटिव होगी. ओके. एंड इफ द W इज लेस देन जीरो मीन्स W इज नेगेटिव तो हम लोग क्या कहेंगे वर्क इज डन बाय द सिस्टम. अंडरस्टूड. वर्क इज डन बाय द सिस्टम. क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी है. W माइनस होगा यानी लॉस ऑफ एनर्जी सो डेफिनेटली वर्क इज डन बाय द सिस्टम. ओके. नेक्स्ट केस इफ n1 इज ग्रेटर देन n2. अगर n1 की वैल्यू ग्रेटर देन n2 है देन डेल्टा Ng इज नेगेटिव. डेल्टा Ng नेगेटिव हो जाएगा एंड W इज ग्रेटर देन जीरो एक्चुअली. तो W की वैल्यू प्लस होगी वहाँ पे. पॉजिटिव वैल्यू वी आर गेटिंग ऑफ W दैट इज वर्क डन. अगर W की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या कहेंगे हम लोग वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग. अंडरस्टूड. वर्क इज डन बाय द ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग. एंड द थर्ड केस इफ n1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू n2. अगर दोनों की वैल्यू सेम है देन डेल्टा Ng इज इक्वल टू जीरो. अब डेल्टा Ng इज इक्वल टू जीरो यानी W इक्वल टू जीरो. तो W इक्वल टू जीरो हुआ यानी क्या नो वर्क इज डन. सो प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज जीरो ओवर देयर. सो नो वर्क इज डन वी कैन से. अंडरस्टूड. सो ये W का जो साइन है वेदर इट इज पॉजिटिव नेगेटिव और W इक्वल टू जीरो दैट वी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ हियर द वैल्यू ऑफ n1 एंड n2. n2 is greater than n1. W lesser than 0 means work is done by the system. W negative होगा work is done by the system. If n1 is greater than n2 delta Ng negative that's why the value of W is greater than 0 means W हो जाएगा positive. That's why we can say work is done on the system by the surrounding. And if n1 and n2 value both are same delta Ng equal to 0 W is also equal to 0 so we can say no pressure volume work is done over here. Okay. No pressure volume work. Understood बच्चों. So simple सा derivation है please practice कर लेना. We'll go for the next term. अब यहाँ पे से बहुत ही easy derivations नहीं theoretical part आएंगे. easy things है where we have to learn the different definitions. Okay. start करते हैं फिर the enthalpies of physical transformation. उसमें देखते हैं एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन. फेज ट्रांजिशन यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ स्टेट सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड और समटाइम्स सॉलिड टू डायरेक्टली लिक्विड. ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा. अब कब होगा तो हीट अगर एब्जॉर्ब करेंगे तब या फिर हीट रिलीज करेंगे तब. सो विल सी दैट थ्री स्टेट्स और एंथैल्पीज ऑफ फेज ट्रांजिशन इन थ्री वेज. द फर्स्ट वन इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. फ्यूज होना यानी क्या मेल्ट होना एक्चुअली. इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा FUSH. ओके. इस तरह से वो लिखते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. ठीक है. डेल्टा FUSH एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन वेयर H stands for enthalpy. See the definition. Enthalpy change occurs when 1 mole of a solid, okay, 1 mole of a solid is converted into liquid without change in temperature at constant pressure is known as enthalpy of fusion. Okay. Enthalpy of fusion क्या है? Enthalpy change occurs, so there is a change in enthalpy when 1 mole of a solid, 1 mole यानी कितना होगा? It is equivalent to molar mass of that particular substance. Okay. 1 mole of a substance is converted into liquid without change in temperature. Okay. Yeah, this is the most important thing. Without change in temperature at constant pressure is known as enthalpy of fusion. Let's see the example देख लेते हैं. Enthalpy of fusion of water only. H2O gives H2O solid. Okay. H2O solid gives H2O in a liquid form. हाँ. So solid H2O यानी क्या? Actually ice turns into the liquid water. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या हो गया यहाँ पे डेल्टा FUSH इज इक्वल टू प्लस 6.01 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस. ओके. तो यहाँ पे आइस एब्जॉर्बिंग 6.01 किलो जूल एनर्जी. अब वो पर मोल है यानी 18 ग्राम. अगर मोलार मास ऑफ वाटर इज 18 ना यानी 18 ग्राम वाटर ले लेंगे यानी 18 ग्राम आइस ले लेंगे तो इट बिकम्स 1 मोल आइस. अंडरस्टूड. 18 ग्राम आइस लेंगे तो क्या होगा? इट बिकम्स 1 मोल आइस. सो 18 ग्राम आइस मेल्ट होने के लिए कितनी एनर्जी लगती है? 6.01 किलो जूल एनर्जी. कितनी? 6.01
किलो जूल एनर्जी। अंडरस्टूड। अब ये तो हो गया एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, दैट इज सॉलिड टर्न्स इनटू द लिक्विड, दैट इज मेल्टिंग हो गया। अंडरस्टूड, फ्यूज होना मतलब। सिमिलरली एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल है वहाँ पे एक्चुअली कि लिक्विड H2O लिक्विड टर्न्स इनटू द H2O इन सॉलिड स्टेट। ओके, H2O in a liquid state turns into H2O solid state. So enthalpy of freeze कितना है होगा, -6.01 किलो जूल ऑफ एनर्जी एट 0 डिग्री सेल्सियस। यानी लिक्विड when turns into the solid one, okay, liquid turns into the solid one, तो क्या हो जाएगा, there is a loss of heat, लॉस ऑफ एनर्जी बाय द सिस्टम ओवर हियर, लॉस ऑफ एनर्जी हो गया। सो कितना एक्चुअली एनर्जी लॉस करता है, 1 मोल ऑफ वाटर यानी 18 ग्राम वाटर 6.01 किलो जूल ऑफ एनर्जी लूज करता है इन द एटमॉस्फेयर। अंडरस्टूड, 6.01 किलो जूल ऑफ एनर्जी। सो सॉलिड वाटर टर्न्स इनटू लिक्विड वाटर, देयर इज अ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कितना, 6.01 किलो जूल फॉर 1 मोल। And liquid water when turns into the solid water, that is called freezing actually, there is a loss of energy, कितनी एनर्जी, 6.01 किलो जूल फॉर 1 मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज कॉल्ड द एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन। बच्चों आपको डेफिनेशन याद रखना है एंड द एग्जाम्पल याद रखना है इसके लिए, बिकॉज इसके ऊपर डेफिनेशन ही है, आपको पूछेंगे, अदर थेरोटिकल पार्ट तो है नहीं कुछ। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइज होना यानी क्या होगा, लिक्विड टर्न्स इनटू गैस, करेक्ट ना, लिक्विड विल टर्न्स इनटू गैस। सो सी द डेफिनेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इट इज द एंथैल्पी चेंज accompanying the vaporization of 1 mole of a liquid without changing its temperature at constant pressure. Okay, enthalpy of vaporization क्या, enthalpy change takes place when 1 mole of a liquid turns into the gas, but obvious 1 mole of a liquid turns into the gas, that is called enthalpy of vaporization. Example देख लेते हैं, H2O liquid turns into H2O in a gaseous state, delta VAPH that is enthalpy of vaporization कितना है, प्लस 40 किलो जूल पर मोल एट 100 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टूड, H2O लिक्विड फॉर्म में हो गया इनटू द गैसियस फॉर्म, तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कितना होगा पर मोल, 40 किलो जूल, यानी 40 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज टेकन आउट बाय द 18 ग्राम ऑफ वाटर टू टर्न्स दैट लिक्विड वाटर इनटू द गैसियस वाटर, ओके, एट 100 डिग्री सेल्सियस। H2O लिक्विड टर्न्स इनटू दी वाटर इफ टेम्परेचर इज चेंज, अगर टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं तो कितना, तो फिर एनर्जी में कुछ चेंजेस आएंगे, यस बट ऑब्वियस आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पे चेंजेस हो रहा है। H2O लिक्विड टर्न्स इनटू द H2O गैसेस फॉर्म, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज प्लस 44 किलो जूल पर मोल, यानी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, सो इट रिक्वायर्ड मोर हीटिंग एक्चुअली, मोर एनर्जी to turns from liquid into the gas. And this one third example, H2O gas turns into the liquid, gas to converts into the liquid, that process is known as actually condensation process. So here enthalpy of condensation is given at 100 degree Celsius, that is minus 40 kilojoule per mole. okay, तो गैस का कूल डाउन होगा और कन्वर्ट होगा इनटू दी लिक्विड, क्योंकि गैस को कंप्रेस करेंगे और कूल करेंगे तभी गैस का कन्वर्जन लिक्विड में होगा। अंडरस्टूड। अब गैस को कूल करना मतलब उस पर्टिकुलर सिस्टम में से एनर्जी को निकाल देना बाहर। अंडरस्टूड। सो हियर सिस्टम लूजेज द एनर्जी, कितना एनर्जी लूज कर रहा है, स्पेशली वाटर, 18 ग्राम वाटर कितना लूज करेगा, 40 किलो जूल ऑफ एनर्जी, दैट्स वाई -40 लिखा है वहाँ पे। अंडरस्टूड। सो द अर्लियर टू एग्जाम्पल्स आर द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड द लास्ट वन is the enthalpy of condensation. Understood? Remember the definition along with the example, at least one example भी learn कर लिया तो that is enough. The last point, that is enthalpy of sublimation, which is known as delta SUBH. Sublimation यानी क्या, it is a process of conversion of a solid directly into gas or gas to solid. Let's see the definition. It is the enthalpy change for the conversion of 1 mole of a solid directly into vapor. Okay, when 1 mole of a solid directly turns into the vapor, during that course only whatever change in enthalpy from reactant to product, that change in enthalpy is regarded as enthalpy of sublimation, denoted as delta SUBH. Understood? जब 1 मोल सब्सटेंस स्पेशली सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, that time change in enthalpy is no, that is said to be enthalpy of sublimation.
देखते हैं एग्जाम्पल अगेन, विल टेक द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वाटर ओनली. सो वाटर इन अ सॉलिड स्टेट directly goes into the liquid gaseous state. So solid turns into gas, that is called enthalpy of sublimation. अब उसके लिए एनर्जी कितना है 51.08 किलो जूल पर मोल, यानी 18 ग्राम वाटर इन अ सॉलिड स्टेट टर्न्स इनटू द, बट ऑब्वियस 18 ग्राम वाटर इन अ गैसियस स्टेट, तो वो 1 मोल सॉलिड टर्न्स इनटू दैट 1 मोल ऑफ अ गैसियस स्टेट. कितना एनर्जी लग रहा है स्पेशली फॉर वाटर H2O के लिए 51.08 किलो जूल एनर्जी, यानी 18 ग्राम के लिए 51.08 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है टू टर्न सॉलिड डायरेक्टली इनटू द गैस. अंडरस्टूड. यहाँ पे एक्चुअली हियर दैट कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड टू गैस एक स्टेप में भी होगा, नंबर ऑफ 2 स्टेप में भी हो सकता है. एक स्टेप में यानी डायरेक्ट कन्वर्जन होगा, या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल little bit for the little bit time it goes into the liquid state, solid turns into the liquid state, and then liquid goes into the gaseous state. तो ये सारे चेंजेस हो सकते हैं. So just read remember the definition along with the example. So बच्चों ये तीनों जो पॉइंट है, enthalpy of fusion, then enthalpy of vaporization and enthalpy of sublimation, definition याद करना है, okay, along with the example only, बाकी कुछ नहीं करना इसके ऊपर. ओके. सो पहला जो डेरिवेशन था, सिंपल सा डेरिवेशन था, वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन, वो आपको याद कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है अलॉन्ग विद दिस 3 डेफिनेशन, दिस 3 टर्म्स. थैंक यू.